ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی، ایپیسوڈ نمبر 9۔ بٹ سائیں کے بارے میں تو جانتے ہو نا؟ ہاؤ جانتا ہوں۔ وڈیرے سائیں کو اپنی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہی تو محمد ملوک ہے وڈیرا سائیں۔ مجھے پہلے ہی اس مردود پر شک تھا کہ یہی محمد ملوک ہوگا۔ وڈیرا یہ کہتے ہوئے یکدم تیش میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور منشی جمعہ خان کی طرف ایک نظر ڈالی۔ وہ بھی وڈیرے کی طرف ایسی فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، سائیں وڈا، میری بات درست ثابت ہوئی نا؟ ارے منشی بابا جلدی کر، میری 2 نالی بندوق تو لے کر آ، میں ابھی اسے خون میں نہلا کر آتا ہوں۔ سائیں کوڑیل شاہ ہاتھ کے اشارے سے گمبھیر لہجے میں وڈیرے کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے بولا۔ بیٹھ جاؤں وڈیرا سائیں، ابھی تمہیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا۔ پیر سائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ پورے گوٹھ والے اس کے مرید بن چکے ہیں، اور اگر میں نے محمد ملوک کے بھیس میں بٹ سائیں کو ہلاک کر دیا تو پورے گوٹھ والے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وڈیرے نے نحوست امیز تیش سے کہا۔ غصے اور آتش انتقام سے وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ارے بابا، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ پہلے میری بات تو سن لے، یا پھر میں چلا جاؤں، سائیں کوڑیل نے وڈیرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو وڈیرا سالار کچھ سوچ کر چارپائی پر بیٹھ گیا، تاہم اب بھی اس کا پورا وجود غصے کی زیادتی کے باعث مرتعش تھا۔ یہ بات اگرچہ اپنی جگہ درست ہے کہ محمد ملوک بٹ سائیں کے بھیس میں پورے گوٹھ والوں کے لیے روحانی شخصیت اختیار کر چکا ہے، لہٰذا اس طرف سے بھی تمہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا اب اس کے خلاف، مگر اس کی اصل طاقت اب بھی تیرے کو پتہ نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر تو نے ہوش کی بجائے جوش سے کام لیا تو خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا وڈیرا سائیں۔ آخر پتہ تو چلے پیر سائیں، اس کے پاس آخر ایسی کون سی طاقت آ گئی ہے جو تیری سوچ سے بھی بڑھ کر طاقتور ہو چلا ہے، اتنا کہ خود میں اگر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہوں تو کئی بار مجھے سوچنا پڑے گا۔ تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سائیں کوڑیل کی اس گفتگو سے پہلی بار وڈیرے کے چہرے پر غصے اور طیش کی جگہ الجھن نے لے لی۔ کوڑیل شاہ نے ایک طویل ہنکاری بھری اور پھر گمبھیر لہجے میں وڈیرے کو بتانے لگا۔ محمد ملوک یعنی بٹ سائیں کو کالے علم اور سفلی علم پر دسترس حاصل ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک انتہائی طاقتور بدروح کو اپنا محافظ بنا رکھا ہے۔ اور وڈیرا سائیں، تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ شیطانی طاقتوں کی حامل بدروح در حقیقت کون ہے؟ کون ہے وہ؟ وڈیرے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ ہونکوں کی طرح کوڑیل شاہ کا چہرہ تکنے میں محو تھا۔ اسے کوڑیل شاہ کی بات پر پورا یقین تھا کہ وہ غلط ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خود اسے کالے علوم کے توڑ کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ شیطانی طاقتوں کی حاصل بدروح تیری بیٹی سومری کی روح سے ہے، جسے تو نے محمد ملوک کے ساتھ کاری کا الزام لگا کر خود اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالا تھا۔ سائیں کوڑیل شاہ نے جیسے دھماکہ کیا، ویران وڈیرا سناٹے میں آ گیا اور اسے یوں لگا جیسے اوتاق کی بلند چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ پیر سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، بالکل، بلکہ بھلے میری بات غلط سا ہو سکتی ہے۔ سائیں کوڑیل وڈیرے کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا اور اضافہ کیا، میرے اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے اب وہ بدروح میری بھی دشمن ہو گئی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا پڑا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کر اور ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ہی ان دونوں سے نمٹنا ہوگا، ورنہ تیری جلد بازی تیرے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ برابر پیر سائیں، برابر، آپ جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔
मगर ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही कि मेरी बेटी सोमरी की रूह मेरी दुश्मन हो गई है। वडेरे के लहजे में बचगाना हैरत थी, जिसे महसूस करते हुए साईं कोड़ियल तंदिया मुस्कुराहट से बोला, क्यों तूने अपनी धी को फूलों के हार पहनाए थे जो तेरी दुश्मन नहीं हो सकती? तू ये क्यों भूल जाता है कि तूने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी बेटी सोमरी का कत्ल किया था? खैर अब छोड़ इन बातों को। मेरे आने का मकसद दरअसल एक ये भी था कि तुझे मैं खबरदार कर दूं कि अब तेरी बेटी की रूह एक शैतानी ताकत बन चुकी है। ये ताकत तेरे दुश्मन मोहम्मद मलूक यानी भट्ट साईं के काबू में आ चुकी है। अब तू उससे क्या बदला लेगा? इंतकाम तो अब ये दोनों मिलकर तुझसे लेने वाले हैं। मगर लगता है शायद तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आया। साईं कोड़ियल ने गोया अपनी बात की असर पजीरी जांचने के लिए दानिस्ता आखिर में ऐसा कहा और भांपती नज़रों से वडेरे सलार खान के चेहरे की तरफ देख रहा था, जहां थोड़ी देर पहले आतिशे गैज़ का अलाव सुलग रहा था, मगर अब उसकी जगह अनजाने खौफ की कपकपाहट तारी हो गई थी। मेरा मकसद तुझे खौफजदा करना नहीं है वडेरा साईं। अपनी गुफ्तगू की खातर खवा असर पसीरी का अंदाज़ा करने के बाद साईं कोड़ियल ने कहा, मैं चाहता हूं कि किसी तरह इन दोनों का खात्मा कर दिया जाए, मगर तुम्हें बहरहाल मोहतात रहने की ज़रूरत है। साईं कोड़ियल ने यह कहकर जैसे वडेरे सलार खान की मुश्किल आसान कर दी। ये सर बेसर और हैरत अंगेज़ हकीकत थी कि साईं कोड़ियल की बातों ने वडेरे सलार खान जैसे बाजबरूत और मुतकब्बर शख्स को खौफ में मुब्तला कर दिया था। वो कोड़ियल की बात सुनकर जल्दी से बोला, बाबा पीर साईं फिर तुम ही कुछ करो, बस कोई ऐसा इल्म पढ़ो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, मोहम्मद मलूक का भी खात्मा हो जाए और मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाए। वरना गोठ वाले भी समझ रहे होंगे कि वडेरा सलार खान अभी तक एक कारो छोकरे को हलाक नहीं कर सका, लेकिन मैं कत्ल करूंगा उसे अपने हाथों से और गोठ वालों के सामने उसकी लाश दिखाऊंगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले का क्या अंजाम होता है। ऐसा ही कुछ करते हैं। साईं कोड़ियल ने हंकारी ली। तुम एक काम करो साईं, किसी तरह मोहम्मद मलूक को उस सहराई झोंपड़ी से उठवा लो और फिर मुझे इतला कर दो। मैं फ़ौरन चला आऊँगा और उसी के ज़रिए सोमरी की बदरूह को भी बाआसानी काबू किया जा सकता है। साईं कोड़ियल की बात पर वडेरे सलार खान की आंखें चमकने लगी। वो फ़ौरन बोला, ये काम मैं आज ही कर डालूँगा। बस तो फिर ठीक है। साईं कोड़ियल रुखसत होने के लिए अपनी जगह से उठा। जैसे ही तुम ये काम कर डालो मुझे रातों रात इतला कर देना, मैं चला आऊँगा और उस पर एक ख़ास इल्म आजमाऊँगा। चंगा चंगा, वडेरा सलार खान खुश होकर बोला। साईं कोड़ियल जा चुका था। रात सर पर आते ही अचानक धुआंधार बारिश शुरू हो गई। साईं कोड़ियल वडेरे सलार खान की औताक से वापस अपने घर लौटा तो खासा पुरजोश था। वो इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि उसने भट्ट साईं और सोमरी की बदरूह से मुतल्लक पुरअसरार हकीकत से पर्दा उठा दिया था और अब उसकी इंतहाई कोशिश ये थी कि किसी तरह सोमरी की रूह को अपने काबू में कर ले, क्योंकि वो बाकायदा जानता था कि एक बार वो बदरूह उसके काबू में आ गई तो वो नाकाबिल शिकस्त हो जाएगा, बल्कि उस रूह को अपना गुलाम बनाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे काम लेगा, खूब मालो दौलत इकट्ठी करेगा। मगर वो भी जानता था कि सोमरी की बदरूह को काबू करना कुछ आसान भी नहीं। बहरतौर उसे अपने इल्म पर भी पूरा भरोसा था। घर आते ही अपने घर के पिछवाड़े कच्ची कोठरी में जा बैठा। कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके अंगीठी जलाकर उसके करीब बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं। बदहैबत मकरू होंठ मुतहरक थे। ज़रा ज़रा देर बाद वो फिज़ा में अपना दायां हाथ बुलंद करके एक चुटकी भरता, फिर सुलगती हुई अंगीठी के भड़कते हुए शोले कमरे की छत तक पहुंच जाते। ये अमल वो ज़रा ज़रा देर बाद कर रहा था। बाहर शराटेदार बारिश जारी थी।
बादलों की हैबतनाक गड़गड़ाहट और बिजली की गर्ज चमक से दिल हौल रहा था। कच्ची कोठरी की दीवारें शोलों की हिद्दत से सुर्ख हो रही थी। जिस कोठरी में साईं कोड़ियल अपने काम में मसरूफ़ था, उसका एक दरवाज़ा बाहर भी खुलता था। अचानक बाहर ज़ोर से बिजली के कड़कने की दिल हिला देने वाली आवाज़ उभरी और ठीक उसी वक़्त दरवाजे पर दस्तक हुई। साईं कोड़ियल अपने जाप में महू था, इसलिए दस्तक की कानों तक ना पहुंची, मगर फिर दूसरे ही लम्हे दरवाजे पर दोबारा और सह बारह हत्ता के लगातार दस्तक होने लगी तो साईं कोड़ियल ने एकदम अपनी आंखें खोल दी। सुलगती हुई अंगीठी के करीब बैठने की वजह से शोलों की हिद्दत से उसका काला स्याह चेहरा इंतहाई डरावना नजर आ रहा था। दरवाजे की तरफ जाते हुए उसका दिल यकबारगी जोर से धड़का, ताहम वो ना चाहते हुए भी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। साईं कोड़ियल को उस वक़्त किसी की मदाखलत बड़ी गरां गुजरी थी, मगर वो खुद पर जबर करके दरवाजे के करीब आया और कदरे तेज़ आवाज़ में बोला, कौन है? मगर उसकी आवाज़ शायद बाहर तूफ़ान बादो बारह के शोर में दब गई थी, क्योंकि दूसरी तरफ से खामोशी छाई रही। अरे बाबा, बोलते क्यों नहीं, कौन है? इस बार साईं कोड़ियल ने पहले से भी बुलंद आवाज़ से कदरे बेजार होकर पूछा, तो दूसरी तरफ से किसी के यूं बोलने की आवाज़ उभरी जैसे वो मीलों सफ़र तय करके आया हो। दरवाज़ा खोलो बाबा, हम मुसाफिर हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। इस तूफ़ानी रात में अपने यहाँ पनाह दे दो। साईं कोड़ियल को ये सुनकर बड़ा तैश आया, लिहाजा वो उसी लहजे में गुस्से से फुनकार कर बोला, जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कोई सराय है कि रात को हमारी नींद खराब करने आ गए? जाओ आगे। उसके दुरुस्त लहजे पर दूसरी तरफ लम्हे भर को खामोशी छाई रही और उसके बाद वही आवाज़ उभरी। इस बार आवाज़ अजीबो-गरीब लबो लहजे की खमाजी कर रही थी। बाबा, नाराज़ क्यों होते हो? इतना तो हम भी जान गए हैं कि तुम अंदर बैठे आग ताप रहे हो, और क्यों ताप रहे हो ये भी हम जानते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं। ये सुनकर साईं कोड़ियल का माथा ठनका। उसका मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया था। ज़रा देर पहले की दुरुस्तगी भाप बनकर हवा हो गई और उसने बसूरत कुंडी खोल कर दरवाज़ा किया। सामने धुआंधार बरसती तारीकी में उसे दो झुके झुके हयोले नजर आए जो अब वापस लौट रहे थे। बिजली यकबारगी चमकी तो उसकी चुंधिया देने वाली तेज़ रोशनी में साईं कोड़ियल ने देखा कि वो दोनों कोई उम्र रसीद और कमर खमीदा मर्दो औरत थे, शायद मियाँ बीवी, जिन्होंने अपने कांधों पर बगचियाँ भी उठा रखी थीं। साईं कोड़ियल ने फ़ौरन उन्हें आवाज़ दी, ए ठहर जाओ बाबा। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों उम्र रसीदा मुसाफिर मियाँ बीवी रुके और पलट कर कोड़ियल की तरफ देखा। ठीक उसी लम्हे बिजली कड़की और साईं कोड़ियल उनका चेहरा देखकर बुरी तरह ठठक गया। उन दोनों पुरइसरार मियाँ बीवी के चेहरे इंतहाई डरावने थे। झुर्रियों भरे स्याह लंबोतरे और इस्तखवानी चेहरे, गिद्ध की चोंच की तरह मुड़ी हुई नाक और छोटी छोटी आंखों में वहशत से नाचती हुई जटादार बाल। साईं कोड़ियल ने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया, आओ आओ, आ जाओ। वो दोनों ज़ईफ़ मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ मैनी खेज मुस्कुराहट से देखते हुए वापस पलटे और साईं कोड़ियल उन दोनों को अंदर ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ले बालके, लगता है तू किसी काले मंत्र में मसरूफ़ था। क्या आत्मा शक्ति हासिल करना चाहता है? पर इसमें तो बड़ा जीवन कष्ट करना पड़ता है। बूढ़े ने सुलगती हुई अंगीठी की तरफ बगौर देखते हुए मैनी खेद लहजे में कहा। वो बूढ़ा इर्द गिर्द बिखरे हुए जंतर मंतर से मुतल्लक देगर लवाजमात खबीसा को भी बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। सहन में इंसानी खोपड़ी, कुछ मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ और उनके अंदरूनी जिस्म के अज़ा भी शामिल थे। एक गलाजत बिखरी थी जो मजमूई तौर पर उस तासर को हवा देती थी कि यहाँ सिफली अलूम पर काम हो रहा है। साईं कोड़ियल पुरइसरार बूढ़े के मैनी खेज तबसरे पर चौंका।
अब वो मुतासर नज़र आने लगा था कि वो उसे ऐसा महसूस होने लगा कि ये बूढ़ा कोई ऊंची चीज़ है, वरना उसे कैसे मालूम हुआ कि कोठरी के अंदर क्या हो रहा है। ताहम साईं कोडियल ने एक और बात भी महसूस की थी कि दोनों मियाँ बीवी शक्लो सूरत और लबो लहजे से किसी और ही इलाके के मालूम हो रहे थे, मकामी हरगिज़ नहीं थे। पहला ख्याल उसके जहन में खाना बदोशों का भरा था। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, बस मेरे जीवन की एक ही इच्छा है कि किसी तरह मैं आत्माशत हो जाऊं। साईं कोडियल ने बाछें फैलाते हुए दानिस्ता उस खाना बदोश बूढ़े के अंदाज में उससे मुखातब होकर कहा, अगर आपकी दिया हासिल हो जाए तो आप भी पो 12 हो जाएं महाराज। खाना बदोश बूढ़े के बारीक होंठों पर पुर इसरार सी मुस्कुराहट रक्सा हो गई। ये लोग अब फर्श पर बिछी रली पर ही बैठ गए थे। बूढ़े ने अपनी बीवी से कहा, देख लिया पो परी तूने, काले इल्म की धूम यहाँ भी कम नहीं। तू कहती थी कि मस्तून की गुफाओं से निकलेंगे तो लोग हमें पत्थरों से लहूलुहान कर डालेंगे। साईं कोडियल उनकी बात सुनकर चौंका। उसने अंगीठी में से भड़कते हुए शोलों में पहली बार उन दोनों का गहरी नज़रों से जायज़ा लिया तो उसकी रूह तक कांप गई। कोड़, ये दोनों मियाँ बीवी क्या कोड़ी थे? एक लर्जीदा ख्याल साईं कोडियल के जहन में उभरा। उसे अब इन दोनों पर पुर इसरार उम्र रसीदा मियाँ बीवी के चेहरे और हाथों में कोड के बड़े बड़े आबले नुमा जले दाग साफ दिखाई देने लगे थे। उन्होंने शलोके नुमा कमीज़ें और खुले पाइंचों वाले पाजामे पहन रखे थे। दोनों को देखकर एक लम्हे के लिए दिल में कराहियत का एहसास उभरता था, मगर साईं कोडियल को जाने क्यों ये दोनों मियाँ बीवी अपने काम के महसूस हुए। उसने बूढ़े की बात से इतना तो अंदाज़ा लगा लिया था कि ये दोनों किसी कबीले के धतकारे हुए अफराद थे और ये बलूचिस्तान की पहाड़ियों या मस्तून की बेआबो गया तारीख गुफाओं में रहते थे और अब हिजरत करके यहाँ सिंध के इलाके में आ गए थे। महाराज, आप यूँ समझे अब आप अपने कदरदान के पास पहुँच गए हैं। अपने ख्यालात झटक कर साईं कोडियल ने खुशामदी लहजे में कहा, मुझे लगता है आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे महाराज। हाँ बाबा, क्यों नहीं, हम तेरी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। लगता है तू भी अपनी तरह सामरी फ़न जानता है, बूढ़े ने कहा। आप बैठो आराम से महाराज, मैं अभी तुम्हारे वास्ते मानी टुक्कर लेकर आता हूँ, साईं कोडियल ने कहा और अंदरूनी दरवाजे के ज़रिए वो अपने घर के सहन में आ गया। यहाँ बरामदा तारीकी में डूबा हुआ था। अंदर एक साथ 2 कमरे बने हुए थे। एक में उसकी बीवी अनायता महुए ख्वाब थी। वो उसे जगाने के लिए उसके कमरे में दाखिल हो गया। मुराद बख्श सुखा के घर से लौटा तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई थी। अपने घर की वापसी तक सारे रास्ते वो चश्मे तसव्वुर में सुखा के मासूम हसीन सरापे को समोए हुए था। उसे आज पता चला था कि कौसे कज़ा के धनक रंग क्या होते हैं, कड़ी धूप में छाँव के क्या मायने रखती है, बाद शबनमी सहर नोमीदा क्या होती है, दीदारे महबूब से पहले उसकी ज़िंदगी कितनी बेरंग और सूखी फीकी थी, एक चालू मशीन की तरह, वडेरे के ट्रैक्टर की तरह, मौजे दीन के हल की तरह, सूरज निकलने से ज़रा देर पहले और डूबने तक काम ही काम और फिर वापस घर, गर्द घर से खेत और खेत से घर, यकसानियत बेजार कौन ज़िंदगी। मगर अब सुखा ने उसकी वीरान और सहरज़दा ज़िंदगी में जैसे रंग ही रंग बखेर दिए थे, चाहत के रंग, आलमे दीवानगी, फरजानगी में जब वो अपनी ही धुन में अपने तई एक नई हसीन और रंग भरी दुनिया ईजाद किए घर पहुंचा, तो इस सितमे ईजाद की सितमकारी कुछ इस तौर पर रोनमा हुई कि घर पहुंचने पर बाप मोहम्मद बख्श ने उससे पूछा, पुट, मासी मुरादा को पैगाम देकर उसे तसल्ली तो करा दी थी ना? तो मुराद एक लम्हे के लिए चौंक सा गया और भूल गया कि मासी मुरादा के पास क्यों गया था। लिहाजा गड़बड़ाकर उसके मुंह से बेरबत से अल्फाज बरामद हुए। हाँ, क्या बाबा, मासी मुरादा कौन? और उसके बाप मोहम्मद बख्श का माथा ठनका। वो घूर कर अपने जवान और करियल बेटे का खोया खोया चेहरा तकने लगा। वो अपने बेटे मुराद बख्श से बहुत मोहब्बत करता था
और करता भी कैसे ना। भरी बेमहर दुनिया में सिर्फ यही एक बाजू तो था उसका, जिसे देख देख कर वो सुबह शाम जीता था। बीवी तो अरसा हुआ मर चुकी थी। मुराद बख्श वडेरे के फार्म में काम करता था। 2 कमरों के एक कच्चे गारे मिट्टी के घर में दोनों बाप बेटे रहते थे। अरे छोकरा, खैर तो है ना, बुखार तो नहीं हो गया तेरे को? इधर आ ज़रा, मोहम्मद बख्श ने किसी कदर तशवीश अमेज़ लहजे में कहा और बेटे की पेशानी पर उल्टा हाथ रखकर बुखार की हिद्दत जांचने लगा। मोहम्मद बख्श को बेटे की पेशानी वाकई तपती हुई महसूस हुई थी, मगर बुखार की हिद्दत से नहीं, मोहब्बत की हलावत से। तरफ़े तमाशा ये था कि मुराद बख्श अभी तक गड़बड़ाया हुआ था। सुखा का पीकरे हुस्न हनूज उसके दिलो दिमाग में महुए रक्स था। उस आलमे फरजानगी में वो अपने कमरे में आकर रली बिछी चारपाई पर लेट गया। मोहम्मद बख्श हैरान परेशान उसके पीछे पीछे चला आया। 2 घंटे आराम के बाद जब मुराद मोहम्मद बख्श नींद से जागा तो ज़रा खाली जहन और पुरसकून सा नज़र आने लगा। बाप बेचारा अभी तक परेशान परेशान सा पैंती बैठा था। बाबा खैर तो है, तुम इधर बैठे हो, क्या मैंने तुम्हें मासी मुरादा के बारे में तो कुछ नहीं बताया? उसने चौंकते हुए हैरत से कहा। तू अपनी सुध में किधर था? कुछ बता ही नहीं रहा था कि तूने मासी मुरादा से क्या कहा? मोहम्मद बख्श ने कहा। मुराद बख्श जैसे सब कुछ समझते हुए होले से मुस्कुरा दिया और फिर रसान के साथ बोला, हाँ बाबा, मैंने मासी मुरादा को तसल्ली करा दी थी कि तेरा पैगाम भी दे दिया था। बेचारी दोनों माँ बेटी खुश हो गई थी। माँ बेटी? अरे पुट, मोहम्मद बख्श बोला, मासी मुरादा सुखा की माँ नहीं है। ये कहते हुए बेटे को सुखा से मतलब सारी बात बता दी। और जब मुराद बख्श को ये पता चला कि जलील इंस्पेक्टर आली जा ने सुखा की मजबूरी से खेलने की कोशिश की थी तो वो बुरी तरह चौंक गया। फितरी तौर पर मुराद बख्श एक ठंडे दिलो दिमाग का शख्स था। बिला वजह किसी से उलझने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन सुखा वाले मामले ने एक लम्हे को उसे भी तैश में मुब्तला कर दिया। मगर अंदर ही अंदर पीछो ताप खाने के अलावा और क्या कर सकता था। ताहम वो जब बाप से मुखातब होकर बोला तो गैज़ की तपश उसके लहजे से मतरशे थी। बाबा, ये तो खुलम खुला ज़्यादती है। कानून के एक मुहाफ़िज़ ने थाने में अपने कमरे के अंदर एक ऐसी मजबूर और मुसीबत की मारी कमज़ोर लड़की की इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की, जिस बेचारी का बाप भी कत्ल हुआ और अब बजाय पुलिस के उसके कातिल को पकड़ती उल्टा सुखा के दोनों भाइयों को झूठे इल्ज़ाम में धर ले गई। बाबा, आपने वाकई एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया। नौकरी की भी परवाह नहीं की, बहुत अच्छा किया आपने। मगर मेरा तो ख्याल है कि उस शैतान की शहर के बड़े अफसर को शिकायत करनी चाहिए। हाँ पुट, दिल तो मेरा भी यही करता है, मोहम्मद बख्श ने भी बरहम होकर कहा। पर तू गलती ना कर, अपना ज़मींदार हाजी अरसला खान बड़ा ही गरीब परवर और नेक नफ्स इंसान है। उसने सुखा की मदद का फ़ैसला कर लिया है। कल तक वो अपनी ज़ाती ज़मानत पर उसके दोनों भाइयों को छुड़ा लाएगा थाने से। बस दुआ कर कि उस खबीस ने उन दोनों गरीब भाइयों के खिलाफ चालान ना बना दिया हो। वैसे बाबा, इंस्पेक्टर ने तुझे एक नेक काम की सज़ा तो दी होगी? जहन की फौरी ख्याल के तहत उसके बेटे ने पूछा। मोहम्मद बख्श के चेहरे पर बड़ी आसूदा मुस्कुराहट फैल गई। अभी तक तो सज़ा नहीं दी, पर मुझ पर वो मरदूद उधार खाए बैठा है। मेरा तो ख्याल है बाबा, तो उसकी नौकरी पर 3 हर्फ भेज दे। तुझे भला नौकरी की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, तेरा बेटा कमा रहा है, तू मज़े से आराम कर। बेटे की बात सुनकर मोहम्मद बख्श का सीना फ़ख्र से फूल गया और वह शफ़क़त से बोला, अल्लाह साईं तुझे लंबी उम्र दे, तू मेरी हयाती है, फिर मैं बेकार बैठकर बीमार पड़ जाऊंगा। ऐसे भी मैं इसका नौकर थोड़ा ही हूँ, सरकार का नौकर हूँ। पट्टे वाला चपड़ासी हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मुहाफ़िज़ ना। मैं दरअसल उस शैतान के करतूतों पर निगाह रखना चाहता हूँ ताकि वो फिर किसी मजबूर लड़की की इज्जत पर हाथ ना डाल सके। मगर बाबा, तेरी सुनेगा कौन? वो तेरा अफसर है और तू मुझे क्या समझता है रे? मोहम्मद बख्श प्यार से बेटे के बाल सहलाते हुए मुस्कुराकर बोला।
میری ایک آواز پر پورا گوٹھ ایسے شیطان خسرت افسر کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا۔ ابھی میری نیک نامی پر داغ نہیں لگا ہے، اور یہ عزت اللہ سائیں کی دی ہوئی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ ہاؤ بابا سائیں، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اچھا ایک بات تو بتا پٹ، محمد بخش بولا۔ ہاں بابا پوچھو۔ یہ ماسی مرادہ کے گھر سے واپسی پر تجھے کیا ہو گیا تھا؟ عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ کہیں اس بڑھیا نے تیرے کو صوفی بوٹی تو نہیں پلا دی تھی؟ مراد بخش باپ کی بات سن کر جھیم سا گیا، اور پھر اس نے نظریں چراتے ہوئے سر کھجا کر بولا، پتہ نہیں بابا مجھے کیا ہو گیا تھا، شاید جن چڑھ گیا ہوگا۔ محمد بخش نے بھی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے۔ اسے بعد میں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا جوان بیٹا کس کے خیال میں کھو گیا تھا، لہٰذا پیار سے اس کا کان کھینچتے ہوئے ہنس کر بولا، خوب جانتا ہوں تیرے اس جن کو میں، اپنے بابا سے بھی دل کی بات چھپاتا ہے نالائق۔ اچھا بتا سکھاں اچھی لگی ہے تیرے کو؟ محمد بخش نے گھاگ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔